So our exam is on 7th of September. Okay. So today I'll talk about how to attempt your actual paper and what should be the do's and don't you should do. Okay. So looking at score is approximate 100 coming up. So 150 marks का paper है we know, and 110 से 120 के आसपास का आपका this will be your ideal cut off in the exam. 110 से 120 ये score आ रहा है तो you will end up with the top NLEs for your law program. Okay, this should be your ideal target in the mock. So far whatever preparation you have done, जैसे कि कल आजा सर का जीके का सेशन था, so he told you about the what should be do's and don't, and likewise maths का section, English and all. So you need to keep in mind all the pointers which is taught by all the faculties. ठीक है. So last moment पे अपने को अभी के लिए ये सब चीजों पे प्लान करना है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है. I'll be getting the good result, I'll be getting the good score. ये खुशी में प्लान कर लो कि पार्टी कब करनी, पार्टी क्या करनी है, वैकेशन पे जाना है तो कोरोना के बाद यू विल गो आउट. ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ अ फीलिंग गुड. सो एक ये प्लान बना लो, करना ना करना वो बाद में देखेंगे, बट इसके मोटिवेशन में एटलीस्ट आप पढ़ोगे तो अच्छे से यार, और रिजल्ट तो अच्छा आएगा. सो gift yourself that you will be hitting good score surely and you will be going for the party or the vacation or anything as such, घूमने जा रहे हो. तो अभी का टाइम जो है वो एग्जाम अच्छे से फोकस कर लेते हैं. 7 सितंबर को एग्जाम है अपनी. ठीक है, होप ये पोस्टपोन ना हो. ठीक है, तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है एंड वी नीड टू एज ऑफ नाउ रिवाइज ऑल द कंटेंट. वी नीड टू गो फॉर द जीके प्रेप, ऑल द जीके डेटा एंड मॉक टेस्ट. अभी के लिए सिर्फ यही करना है आपको, रिवीजन, जीके पे काम करना है एंड मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस. सो नेक्स्ट टुडे इज अबाउट 21st. सो आपके पास 15 डेज है अप्रोक्सीमेट. सो दीज डेज यू हैव टू वर्क अपॉन योर मेजरली मॉक टेस्ट. मिनिमम 10 मॉक तो लिख के जाना है, और पास्ट ईयर का जो पेपर है वो भी आप सॉल्व करो. आपके पोर्टल पे पास्ट पेपर भी है एंड देयर इज द मॉक टेस्ट ऑल्सो. So do solve all these things. What's the score coming up in the GK? GK में क्या score है? How is the GK performance, you people? How much score you are getting in your mock test in the GK section? Kindly post. Yes, Twyla, Ujjwal, Divya. CLAT GK time consuming है, but I guess yesterday Ajaz sir told you how to handle the GK section, right? You don't have to read entire paragraph. GK में अगेन पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पे जाना है आपको, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है. सर ऑल्सो टोल्ड यू यस्टरडे, राइट? कल वाला सेशन अगर आपने अटेम्प्ट किया है, so you must be knowing how to handle the GK. GK में आपको पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है. ओके, GK में just attack the question directly. Okay, Twyla. What about Divya, you? Ujjwal, what about you? अप्रोक्सीमेट ऐसे दे दो, एग्जैक्टली नहीं रहेगा तो भी चलेगा. ओके 10. ठीक है, 15. This should be your ideal way of preparing as of now. मॉक लिखो और स्कोर मेजर करो कि कितना स्कोर आ रहा है. So let's say you have written first mock test. See what score you have scored in that particular mock test. What are the mistakes you are doing as of now so far? Work upon it. Revision करो उसको अगर you have forgot the अगर concept and all. And if you know that कि वो question you don't know at all, then it's not time to prepare the new topic. तो अभी के लिए न्यू टॉपिक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है. इफ यू थिंक ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, लीव दैट टॉपिक, बिकॉज एनीवे इन द एग्जाम यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. तो उसको वो टॉपिक में, वो एरिया में डाल दो जो आप एग्जाम में छोड़ने वाले हो. ठीक है. लाइकवाइज जब मॉक 2 लिखोगे तो मॉक 1 से इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए स्कोर वाइज इन मॉक 2. ओके,
लाइकवाइज मॉक 3, मॉक 4, मॉक 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन. ठीक है, तो अभी मॉक लिखो एंड उसकी एनालिसिस बहुत केयरफुली करो. What score you are getting, what mistakes you are doing, and what are the silly mistake you are doing, how much time you are devoting for a particular question or that topic, and after then where you can reduce your time and all. So इस पे काम करो. Okay. So far any doubts? So if people have. Ananya Thakur, so many after so many days दर्शन हुए आपके. How is the preparation going on? Guys respond, at least type करो, respond करो मुझे. Post your what I'm asking. Yes Ananya, what's your score coming up in the mock? Mock में score कितना आ रहा है? Approximate. Okay. Okay. 80 approx. Okay. Till here any doubt guys? Any question you people have regarding mock or anything as such? Any doubt? Okay. No doubt. This is what my approach to attempt the paper. मतलब when I am attempting the paper तो मतलब tiger is running behind me. This should be your ideal way of attempting the mock test. मतलब you have to run through the paper, but at the same time you have to keep your accuracy intact. Accuracy मतलब speed बढ़ा लिया तो accuracy कम होगी, वो नहीं होना चाहिए. So tiger is running behind me. That way you have to attempt your paper because there are 150 question. अपने पास 100 मिनट 120 मिनट्स का टाइम है. 120 मिनट्स. Okay. So ये वाला अप्रोच यू नीड टू अडॉप्ट, बट या मेक श्योर आपकी एक्यूरेसी जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो राइट होने चाहिए, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग आल्सो. एंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पेपर, अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है सो यू शुड जंप दैट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. immediately skip that question and move to the next question. So you have to maintain your speed and you have to at the same time accuracy also. और अभी it's a time to do now only because 7 September we have exam. और इस साल अगर एग्जाम नहीं निकला so there will be a difficulty to get the top college for your law program. So this is what the how you have to attempt the paper in the exam. Mock test, as I said earlier, you need to write mock test because we get these are the benefit, familiarity with the interface, how our interface will be, toggling button next and previous, save and next, etc. You get a time pressure. Time pressure होना बहुत जरूरी है. When if you write the mock test, time pressure get created and after then you really think कि यार मेरा preparation अच्छा नहीं हुआ, या तो फिर for particular question you are wasting your time. डिमोटिवेशन भी आएगा, नेगेटिव वाली फीलिंग भी आएगी, बट अभी के लिए इस पे फोकस करने का टाइम नहीं है. डोंट गेट डिमोटिवेटेड. मॉक लिखो एंड 3rd और तो 4th सितंबर तक के बाद कोई मॉक नहीं लिखना. 3rd या 4th के बाद जो भी स्कोर आ रहा है उसके बाद मॉक बंद कर दो. 3-4 तारीख के बाद कोई भी मॉक नहीं लिखना, बिकॉज उसके बाद मॉक लिखोगे तो देयर विल बी डिफिकल्टी. डेट इज फिक्स 7th of September. या as I said कि I hope ये postpone ना हो. Okay. After writing the mock test, strong weak area acknowledgement you will get and you can build up your exam day strategy. So this is what the benefit to write the mock. Okay. So that's why कम से कम 10 mock तो लिखना ही है अपने को before we go for the exam, and इसकी analysis भी अच्छे से करनी है. Analysis I'll tell you further इसकी analysis कैसे करनी है. So this is how you have to do the paper analysis. Question की analysis करो for particular question, how much time you have devoted for particular question. और अगर कम time वो question topic बहुत अच्छा था आपका, then also you have
इट इज राइट बट यू वेस्टेड मच टाइम, तो वो नहीं होना चाहिए था. तो for particular question how much time you are devoting, because CLAT is now entirely reading based. You have to read the data and then you have to mark. So comprehension आपकी skill अच्छी होनी चाहिए, understanding skill. Section wise analysis, in which section you are scoring good marks and your accuracy is also good, speed is also good, and in which section you are lacking, ये पता होना बहुत जरूरी. और ये after writing 3 4 5 mock you will get to know this, depend on how good you have done the analysis and time analysis. For particular question how much time you are devoting. For example particular question 30 सेकंड में होना था बट आपने लगा दिया 1 मिनट का टाइम, जो 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया आपने. दिस शुडंट बी हैपन. ठीक है. सो वाइल यू आर आफ्टर, एक बार मॉक कंप्लीट हो गया तो उसके एनालिसिस कुछ ऐसे करो. जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है सबसे पहले जाओ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. डोंट बी हैप्पी कि मैंने इतने क्वेश्चन राइट किए. जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था उसको वापस से सॉल्व करो. उसके बाद सेकंड नंबर पे द क्वेश्चन विच यू हैव मेड रॉन्ग, वो देखो कि आपने क्या सोचा था और आपने मार्क किया आंसर, और सोल्यूशन बेसिकली क्या है और क्या मिस्टेक किया आपने. So you should know what mistake you have done, so that you should not repeat those mistakes further. Third and very important, the question we have made right attempt हुआ है, don't be happy कि यार right हो गया मेरा, उस पे टाइम के एनालिसिस करो. मतलब अगर क्वेश्चन वो 30 सेकंड का था, अगर आपने 60 या 70 सेकंड्स ले लिया, मतलब राइट भी है तो क्या फायदा, यू हैव टेकन मच टाइम, राइट. सो दैट शुडंट बी हैपन. अगर राइट हुआ है क्वेश्चन को तो ट्राई टू मेक इट कि उसको और कम टाइम में करूं मैं, ताकि जो भी टाइम बचेगा आई कैन स्पेंड ऑन सम अदर सेक्शन एंड अदर क्वेश्चंस. ओके, टिल हियर एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी डाउट? अगर कुछ डाउट वगैरह है तो यू कैन पॉज में एंड आस्क देन एंड देयर. एंड काइंडली मेक द नोट ऑफ दिस, जो भी मैं बता रहा हूँ ये नेक्स्ट 15 डेज आपको यही करना है जो मैं बता रहा हूँ. कुछ नया नहीं पढ़ना. एनी टॉपिक, डोंट गो फॉर द एनी न्यू स्टडी मटेरियल एज सच. ओके, एंड डू क्रिएट योर चार्ट. ये वाले टाइप से आपका चार्ट प्रिपेयर करो. द टॉपिक विच यू थिंक यार मेरा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ तो मैं फोड़ के रख दूंगा, वो वाले लिस्ट करो यहाँ पे टॉपिक. ठीक है, कि यहाँ पे अपना काम अच्छे से होने वाला है. एग्जाम में सबसे पहले लेट्स से अगर मैथ्स सॉल्व करो तो मैथ्स में ये वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा, या तो इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा. सेम गोज टू द लॉजिक. तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया पता होना चाहिए आपको कि ये वाले क्वेश्चन को पहले अटैक करना है एग्जाम में. एज देयर इज अ नो सेक्शनल बाउंडेशन, आप सेक्शन टू सेक्शन जंप कर सकते हो. द एरिया यू थिंक कि मेरा ओके ओके है तो उसको यहाँ पे, द एरिया विच यू थिंक कि मेरा टाइम लगने वाला है उसको वीक एरिया में डाल दो. और द एरिया विच यू हेट, जो अपने को सॉल्व करने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसको तो सबसे पहले लिस्ट करो और छोड़ दो, क्योंकि वो टॉपिक एग्जाम में भी आएगा तो भी नहीं करना अपने को. ओके, तो ये चार्ट रेडी करो, हेट, वीक, ओके एंड स्ट्रॉन्ग. ये चार्ट आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट 15 डेज के लिए इस तरह से पढ़ो. तो अगर लेट्स से कि लॉजिक के अंदर आपका ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है तो स्ट्रॉन्ग एरिया में डाल दो. इफ यू थिंक मेरा पजल ओके ओके है तो उसको यहाँ पे डाल दो. इफ यू थिंक मेरा क्रिटिकल रीजनिंग वीक है तो उसको यहाँ पे रख दो. एंड इफ यू थिंक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो नहीं आता तो उसको यहाँ पे लिस्ट कर दो लाइकवाइज. तो ये सारे सेक्शन को, फॉर एवरी सेक्शन यू हैव टू मेक दिस. ओके, so this is what exactly you have to do while you come after the mock test. Now I want to know how you are attempting the mock. कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हो? This is what the pattern, no, right? What is your order of attempt? पहले कौन सा सेक्शन चालू कर रहे हो और कौन सा सेक्शन लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो? Kindly post your order of attempt. English, logic, legal, GK, maths. Not bad. Very good. What about others? Maths, legal, GK, English, LR. Okay. Logic, English, logic, legal, English, GK, maths. Majority people kept maths in the last. ठीक है.
ठीक है, मेरा एक ऑल टाइम आई से टू एवरीवन कि इंग्लिश को कभी भी लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है. सो डोंट अटेम्प्ट इंग्लिश सेक्शन इन द लास्ट. सो दैट्स अ पॉइंट नंबर 1. सेकंड, you are starting with logic, some people starting with English, choice is yours. मतलब मेरे केस में इंग्लिश आप पहले चालू कर लो, फिर जीके कर लो, लीगल, रीजनिंग, कॉन्ट, ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो आप. दिस इज द बेस्ट ऑर्डर. नाउ दिस, अगर आपको लग रहा है कोई देयर इज सम अदर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट व्हिच इज वर्किंग फॉर यू, डेफिनेटली गो फॉर इट. एट द एंड अपना स्कोर अच्छा आना चाहिए. तो डिपेंडिंग ऑन योर the order of attempt which is working for you, go for it. Okay, but don't attempt English section in the last. So English पहले कर लोगे, that's fine. फिर light area है GK. Okay, GK में कल वाला सेशन में जो अजय सर ने बताया, do follow that. Don't read entire paragraph. Just hit the directly questions. ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने में, रामायण करने में, वो सब पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना आपका. ठीक है, that should, and legal after then, and then reasoning and quant. तो ये आपका ब्रेकअप है 28 से 32 क्वेश्चन, 35 से 39 और फॉर द जीके. लीगल में 35 से 39. तो ये दो एरिया आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से है. 28 से 32 रीजनिंग, 13 to 17 लेस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम quant. Now time wise, I don't know what time you people are devoting. Have you people decided any time? Okay, LR in the last, but 10 to 15 questions are remaining, or else I end in hurry. So Ujjwal, what you can do, you can change the order of attempt. लास्ट में एक बार मैथ्स को रख के देखो क्या होता है, बिकॉज मैथ्स एनीवे आई डोंट नो, क्योंकि मैथ्स के अंदर अपने को पढ़ने के बाद इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वी ट्रिगर द क्वेश्चन. तो रीडिंग वाला पार्ट वी कैन नॉट डू इन द लास्ट. इनफैक्ट लॉजिक के अंदर आपका क्रिटिकल रीजनिंग व्हिच आई टेकन डे बिफोर स्टडी लेक्चर, उसके अंदर रीडिंग ही है. तो दैट यू कैन नॉट डू इन द लास्ट. सो दैट्स व्हाई एलआर लास्ट में करना आई डोंट सजेस्ट. सो मैथ्स को लास्ट में रखो उज्जवल. So that will be, that might work. Just try this one, this time this one. So time wise, what I suggest 20 से 32 questions है. So I don't know how much time you people are giving. So English के लिए approximate 25 minutes बहुत हो गया. Yeah. GK 20 minutes से ज़्यादा नहीं यार. And again I'm telling you, don't read entire paragraph in the GK. Hit directly to the question. लीगल में 35 to 39 क्वेश्चंस है, which again the part of reading. So I believe approximate 30 minutes, or maybe 30 minutes से 35 minutes भी लग सकता है. Yeah. Reasoning 25 minutes is sufficient. तो कितना टाइम हो गया? 25 है, 25 है, 50 and 20 is 70 plus 300, बचा 20 minutes. तो 20 minutes अगर 15 minutes में मैथ्स हो जा रहेगा, तब जाके you can give 35 minutes to the legal area. एंड अगर 20 मिनट्स में लगे, अगर मैथ्स को लगेगा, तो फिर लीगल के लिए अपने को 30 मिनट्स मिलेगा. डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एरिया एंड द सेक्शन, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली. If you take 40 minutes, तो that is much time Ananya you're taking. तो 35 minutes is I suggest, इससे ज़्यादा नहीं. You have to quick in the reading. This time मतलब क्लैट में तो पूरा डिफाइन किया है कि आपकी रीडिंग पूरी तरह से ही चेक करोगी. So don't think CLAT gonna to be easy. CLAT reading, those who think कि reading अच्छी है, तो they can hit the good score in the CLAT. So again, that's why write at least 10 mock test. तो जो भी मिस्टेक करना है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मॉक में हो जाए, रियल एग्जाम में नहीं. So Ananya, try to do legal in 35 minutes, and in that case maths को 15 minutes मिलेगा. Okay, this is what the rough order time spending should be done on particular section. If you are working according to your time space, then definitely go for it. At the end score आना चाहिए. ठीक है? Okay. Any doubt, any question here?
सो वंस अगेन जितना भी मॉक है लास्ट 5 to 6 7 ईयर आई गेस पेपर है आपका, 7 ईयर का पेपर है क्लैट का आपके पोर्टल पे test.menuedu.com। अगर जिसने मॉक नहीं लिखा है डू राइट ऑल दोज मॉक एंड आपके पास 10 मॉक है आई गेस, वो कंप्लीट करो। तो ये अभी रिमेनिंग डेज सिर्फ मॉक लिखना है, जीके को रिवाइज करना है, जीके प्रिपेयर करना है, और जो टॉपिक पे मॉक में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा उसको रिवाइज करो, दैट्स इट, इतना ही करना है अभी। एंड ये आपका आइडियल स्कोर टारगेट होगा इन द क्लैट आउट ऑफ 150। ये कट ऑफ रैम्बल करेगा आपका आफ्टर योर दिस रिजल्ट गेट आउट। 110 से 120 का स्कोर, तो अगर मॉक में ये आ रहा है स्कोर तो रियल एग्जाम में यू विल बी नियर टू दैट ओनली। तो एनालिसिस के लिए वी नीड टू हैव दिस मच ऑफ स्कोर, 110 से 120 का स्कोर आउट ऑफ 150। That's it guys, this is what the next thing which you have to do in next remaining days. So 2-3 pointers, अगर इस साल मार्क्स अच्छा नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम, फिर सीटी पे जाना पड़ेगा अपने को, या देन वी हैव टू वेट फॉर द सीटी एंड क्लैट के थ्रू यू विल गेट द एनएलयूज। तो दैट्स फर्स्ट गो फॉर द एनएलयूज अगर क्लैट अच्छे क्रैक स्कोर से मिल जा रहा है तो। सो सीटी बाद में देखेंगे अपन, अभी के लिए अपना टारगेट है क्लैट, क्योंकि वी डोंट नो सीटी में भी स्कोर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। सो अभी के लिए पूरा प्रिपरेशन जो है वो क्लैट पे दे दो। ओके, डोंट थिंक अबाउट द सीटी एज ऑफ नाउ। सीटी की दो जो आर नॉट राइटिंग क्लैट तो वो तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, देन दे हैव टू गो फॉर द सीटी ओनली, प्रिपेयर फॉर द सीटी। दूसरा, अगर क्लैट क्रैक होता है विद गुड स्कोर तो आपको इंडिया का टॉप एनएलयूज मिलेगा फॉर योर लॉ प्रोग्राम, where people dream to get into this but very few people end up with because of this score। एक बार स्कोर आ गया तो लाइफ सेट है। ओके, सो अभी के लिए होल एंड सोल 100% आपका डेडिकेशन क्लैट के प्रिपरेशन पे दे दो, एंड आवर एजेंडा इज दिस 110 to 120 का स्कोर। ये एक बार अचीव हो गया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो रिगरसली ये स्कोर अचीव करने पे वर्कआउट करो, जो जो एरिया वीक है उसको रिवाइज करो, जीके पे जितना हो सकता है जो मटेरियल दिया है सर ने बताया है वो सब गाइडेंस फॉलो करो, ठीक है। सीटी मार्क्स ऑन सीटी में देर आर 10, काइंडली टेस्ट, वो आपको menuer.com पे मिलेगा, menuer.com, जहाँ पे आप वीडियो देखते हो उसके बाजू वाले फुट में मॉक का जो प्रोग्राम वहाँ पे 10 है आई गेस। सेक्शनल दे इज 12 आई गेस एंड 10 इज फुल लेंथ। एंड टेस्ट डॉट जो menuer है menuedu.com वहाँ पे क्लैट मॉक है। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके उज्जवल, सो दैट्स इट गाइस, लास्ट टाइम, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? लग रहा है हो जाएगा क्लैट? कितने लोग को लग रहा है क्लैट मेरा निकल जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मेरा क्लैट में हो जाएगा? किसी को नहीं लग रहा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मेरा क्लैट निकलने वाला है, हो जाएगा? यस ट्वेला, अरे थोड़ा स्पीक आउट गाइस, इतना स्लो रहोगे कैसे चलेगा? ट्वेला, अनन्या, दिव्या, स्पीक आउट, थोड़ा बोलो क्या लग रहा है क्लैट को लेके। 50-50, अफ्रेड ऑफ व्हाट?